Across the nations, across the globe, we are the stars of David. और जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। ये उसका वादा है। हमारा वादों में सच्चा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसको ये जरूरी नहीं है कि हम एक जगह हों। हमें एक दिल होना, रूह में एक होना बहुत जरूरी है, तो ही वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। और आज जो हमने स्टार्ट किया है, हम दो हैं, क्वेटा एंड लंदन, and together we uplift our God. And I form an arc all across, from the north all the way to the south in Quetta. And we've joined by my brother in Karachi. So I sent two arcs all the way from London in the north to the south, one to the west of Pakistan, Quetta, and one to the south of Pakistan, Karachi. I'm sending an arc of fire. I'm sending an arc of fire. Why? Because God has given me that authority, and I am scared to use that authority when it is not desired by Him. So, Father God, help me. Help me as I lead, because I do not know anything, but your Spirit guides me. Enable me to walk in faithfulness, walk according to your will, so that I may be able to please you, because there's nothing that pleases you but faith. And that is what I wish to do, to please you, because we cannot please any man, we cannot please any woman. We will always fall short, but we can please you. It is so easy to please you. I thank you, Father God, that your Spirit is with us and united us at heart, in the Spirit, and as the three are together in blood as well, Father God. But the Spirit bond is much more than the blood bond, because we've been bought by the blood of Jesus. And now, when we are born again into this family, that is the family of Yeshua, Father God, I praise you and exalt your name and lift your name up on high. And as I do that, let us sing to the Lord, for God is enthroned on the praises of his people. We are your people, no matter where we are in the world. In every nation, there are your people, and you hear the cries of your people, and you answer. You answer the one who cries, who pleads, and who doesn't give up, because you seek faithfulness and you desire that we love you beyond measure, and we keep you in front of every human that we have in as a relation. So, Father God, help us to please you, because we do not know how to please you, but your Spirit, your Holy Spirit, intercedes with us and helps us to understand your thoughts, because your thoughts are far from our thoughts. From where our thoughts finish, the scripture says your thoughts start. So, Father God, enable us to learn your ways and to follow the good shepherd who leads us through green pastures. And I do not fear any evil, because your rod and your staff is with me, and you comfort me. The Comforter, the Holy Spirit, my guide, my helper, and my Redeemer, Yeshua, is with me. Who can stand against me? Father God, with this prayer, I seal it in the blood of Jesus. And I bless everyone who's here. Father God, open everyone's ears as I share what you desire me to share, and enable us to praise you in accordance to what pleases you. For God is enthroned on the praises of his people. Thank you, God, for choosing us to be your people. In Jesus' name. And the people said, Amen. 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 Let's praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ हो। खुदावन की तारीफ में सबसे पहले हम ज़बूर से स्टार्ट करेंगे। ज़बूर 130, है यहोवा दे लोग। Oh, yes. Beautiful. उस पे रखो ईमान।
Oh, thank you, my God. यहोवा दे लो उस तरह कोई ईमान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो उस तरह कोई ईमान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो तेरे आगे मैं तंगी बिच की थी दुआ तेरे आगे मैं तंगी बिच की थी दुआ मेरी मिन्नत सुन ले साडे खुदा है यहोवा दे लो उस तरह कोई मान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो जे तू साडे गुनाह दा करे हिसाब जे तू साडे गुनाह दा करे हिसाब क्यों जो तैनू खलो के दे सकदा जवाब है यहोवा दे लो उस तेरा कोई मान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो तेरे कोल है मुआफी तू बख्शदा गुनाह तेरे कोल है मुआफी तू बख्शदा गुनाह ता जो लोकां नू डर होवे तेरा सदा है यहोवा दे लो उस तेरा कोई ईमान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो उड़ीक दिया हो वालू पई मेरी जान उड़ीक दिया हो वालू पई मेरी जान आहुन उस दे कलाम ते में रखदा ईमान है यहोवा दे लो उस ते रखो ईमान क्यों जो भारी नजात है बिचोस दे फरमान है यहोवा दे लो जिमें पैरे वाला वेखदा है फजर दी राह जिमें पैरे वाला वेखदा है फजर दी राह मैं भी उस तो उड़ीक तकदा तैनू खुदा है यहोवा दे लो उस तेरा कोई मान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो ए खुदा दे लो को रखो सब एतकाद ए खुदा दे लो को रखो सब एतकाद इसराइल नु गुनाह तो करदा आजाद है यहोवा दे लो उस ते रखो ईमान क्यों जो भारी नजात है बेचोस दे फरमान है यहोवा दे लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ऐ यहोवा दे लोग, यहोवा दे लोग, वो जो कलाम पे भरोसा करते हैं, कलाम जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया, और उसका नाम है यशुआ। और मुबारक है वो जो ईमान लाए बगैर देखे। और वो कौन है मुबारक? वो है हम, क्योंकि हमने मसीह को देखा नहीं, लेकिन हम उस पे ईमान लाए, और वो हमारा मौजूजात करने वाला खुदावंद है। उसने मेरे लिए मुआवजा किया, क्या वो आपके लिए नहीं कर सकता? वो किसी का तरफदार खुदावंद नहीं। कलाम कहता है कि वो किसी की तरफदारी नहीं करता, लेकिन वो उसकी तरफदारी करता है जो हुक्म मानता है। और हम सब आदम की औलाद से हैं, ना फरमान औलाद, लेकिन जब हम सर झुकाते हैं, उसके खून के धुलते हैं, और फिर वादा करते हैं कि हम हुक्म अदूली नहीं करेंगे, तो वो हमें चुनता है और सरफराज करता है। और तो आए उसकी परस्तिश में आगे बढ़े। हालेलुया। एंड नाउ वी आर ऑन फायर, बिकॉज मैंने 2 आर्क्स बनाई थी, फ्रॉम लंदन ऑल द वे टू क्वेटा।
Then second one, from London all the way to Karachi. And now from London all the way to Lahore. We are on fire. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदासराई, रब की होवे मदासराई। उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए। उसकी हम दो सना, हालेलुया, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, हालेलुया, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ताता साजों पर आगे छेड़ो, ताता साजों पर आगे छेड़ो। टफ और तबले बजा, हालेलुया, टफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। आओ की सना, हालेलुया, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा
रब की हो बेसना। सिस्टर आपका कैमरा, सॉरी, माइक म्यूट है। ओके सॉरी। उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। खुदावन ने 5 दिनों में सब कुछ बना लिया और सब उसकी हुक्म मान रहे थे, कोई हुक्म अदूली नहीं कर रहा था। फिर छठे दिन सब चीजें बनाने के बाद उसने आदम और हवा को बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने जैसा बनाया, अपनी मानंद बनाया। और अपनी मानंद बनाने का क्या मतलब है? कलाम कहता है गॉड इज लव। गॉड इज लव। कलाम ये नहीं कहता खुदा ने प्यार डाला, खुदा ने दम फूका। और मोहब्बत वो है, और हमें उसकी मानंद मोहब्बत करनी थी, लेकिन हमने हुक्म अदूली भी की और मोहब्बत भी नहीं की। तो हम उसका शुक्रगुजार रहें कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए और हलाक ना हो। और ये सब हो सकता है ईमान से। और इसीलिए अब्राहम को ईमान का दारों का बाप कहा गया, क्योंकि उसने अपना इकलौता नहीं, लेकिन अपना अजीज बेटा, जो उसकी पाक बीवी से पैदा हुआ था, उसको कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। उसने भी खुदावन से बहुत मोहब्बत की, और उसने अपनी बीवी से भी बहुत मोहब्बत की कि वो उसका फरमाबरदार रहा, और उसकी फरमाबरदारी में रह के उसने हागर से बच्चा भी पैदा कर लिया। लेकिन फिर उसको उसका 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 टेस्ट पूरा करना पड़ा। गॉड टेस्टेड हिम बिकॉज ही डिड नॉट वेट अपॉन द लॉर्ड। तो हम खुदावन का इंतजार करें। वो अपने वादों में सच्चा है। वो क्या है कि कभी मुकरता नहीं, और उसने जो कुछ कह दिया इस कलाम में, जो कुछ उसने लिखवा दिया 40 ईमानदारों के हाथों से, पाक रूह के वसीले, वो सब पूरा होने को है। और उसका जल्द आना है, उसके बेटे का जल्द आना है। वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हम उसकी तारीफ क्यों ना करें? हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करें? क्योंकि हमने यही तो करना है ऊपर, ताजीम, तारीफ और जय जयकार। तो हम उसकी जय जयकार करें, ताकि हम अच्छी से परस्तिश कर पाए, जो कि उसके शान और शौकत के बराबर हो। हम जिस्म में हैं, लेकिन हमें रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करनी है। तो हम उसकी तारीफ करेंगे और परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। बेशक बेशक, वही एक फतेहमंद नाम है। कलाम में लिखा है कि उसके नाम से हम कुछ भी मांगेंगे। फिर हम मांगते हैं और मिलता नहीं। क्या उसके नाम में कमी है? उसके बाद वाली वर्ष भूल जाते हैं। खुदा की मर्जी के मुताबिक। तो हमें उसकी मर्जी जाननी है। जब हम उसकी मर्जी जान लेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं कि हम यीशु के नाम में मांगे और वो पूरा ना हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के नाम हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है।
हालेलुया यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कौन कर कर सकता सकता है। है? यीशु मसीह के के कादिर कादिर नाम में नाम में हम हम फतह फतह पाते पाते हैं। हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारा प्यारा यीशु यीशु दुल्हा दूल्हा जल्द जल्दी आता आता है। है। कमर बांधो कमर बांधो बांधो कमर कमर बांधो बांधो सब सब मसीहो। मसीहो। कमर कमर बांधो बांधो कमर कमर बांधो सब मसीहो। कमर बांधो बांधो कमर कमर बांधो बांधो सब सब मसीहो। मसीहो। प्यारा प्यारा यीशु यीशु दुल्हा दूल्हा जल्द जल्दी आता आता है। है। प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे। हालेलुया यीशु रूहे पाक से तू भर दे। हालेलुया। प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम से यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं। यीशु यीशु के के नाम से यीशु के नाम से शैतान दूर शैतान भागता है। हालेलुया यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला बाका कौन कौन कर कर सकता है। यीशु यीशु मसीह के के कादिर कादिर नाम में हम हम फतह फतह पाते पाते। हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। हालेलुया हालेलुया। ये बचपन हालेलुया। का सॉन्ग है मेरे, और मैं बहुत जोश से गाती थी जब कोयटा में क्रूसेड्स होते थे। उसमें बहुत ये हर क्रूसेड में ये गीत जरूर गाया जाता था। और मैं तब से सोचती थी छोटे होते भी कि यीशु जब आएगा वो क्या दिन होगा। लेकिन अब वो दिन करीब है। ये जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन यीशु को देखेगी। उसका आना कोई 20 25 30 साल में नहीं है। कलाम कहता है कि कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा, वो दिन तारीख किसी को नहीं पता, सिर्फ बाप को। लेकिन कलाम कहता है कि खुदा कोई काम नहीं करता जब तक कि अपनी मिस्ट्रीज आया ना कर दे। तो दिन तो नहीं पता, लेकिन सीजन जरूर बता देता है। बिकॉज सीजन लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इट इज द कमिंग ऑफ हिज सीजन। नरसिंगा फूकने की आवाज किसके कान तक पहुंचेगी? उसके कान तक पहुंचेगी जो मसा हुआ है। और ये मंथ, अगस्त का मंथ, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप में, इज द मंथ ऑफ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑयल एंड द अनॉइंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Let's please our God with our praises from the heart, so that He anoints us and we become more powerful every single day, because anointing breaks bondages. आमीन हालेलुया। खुदा का शुक्र। आज के प्रेस सेशन का लास्ट गीत गाएंगे, जब तू छुए मेरे जीवन को। और खुदा जब हमारे जीवन को छूता है तो हमारे जीवन में सच में जो कुछ होता Bishop. है। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो विश्व, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो विश्व, हाले हाले Hallelujah. हाले Hallelujah. जुम्बिश करता है
जुम्बिश करता है, छूने से तेरे बदले जिंदगी, छूने से तेरे बदले जिंदगी, मिटा दे दिल की सारी गंदगी, मिटा दे दिल की सारी गंदगी, बख्श मुझे कुछ जीवन अवधि, बख्श मुझे तू जीवन अवधि, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो खुश हो, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो खुश हो, हालेलुया, 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 जुम्बिश करता है, बेशक बेशक वो जुम्बिश करता है, करता है, वो अभी भी जुम्बिश कर रहा है। आप जहां कहीं भी हैं, हम मूसा पे पाकिस्तान और इंग्लैंड में, जैसे जाहिर हुआ तू, मूसा पे जैसे जाहिर हुआ, तू ही कुदरत हमको दिखा तू, वो ही कुदरत हमको दिखा तू, अपनी आग से हमको जला तू, अपनी आग से हमको जला तू, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो विष हो, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो विष हो, दे दे, हालेलुया, हालेलुया, तू जुम्बिश करता है, जुम्बिश करता है, सजदे करूं मैं पूजूं तुझको, सजदे करूं पूजूं तुझको, बैठ के चरणों में चूमूं तुझको, बैठ के चरणों में चूमूं तुझको, हर पल यीशु चाहूं तुझको, हर पल यीशु चाहूं तुझको, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो खुश हो, जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो खुश हो, हालेलुया, 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 तू जुम्बिश करता है, जुम्बिश करता है, बेशक Praise the Lord. बेशक, Praise. प्रेज द लॉर्ड। वो जुम्बिश करता है और वो आज भी जुम्बिश करता है, जहां रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश होती है, जहां सिर्फ मौसीकी, कुरेकारी और गॉस्पेल सिंगिंग होती है,
वहां वाह वाह होती है और रूह जुम्बिश नहीं करता। और जब रूह जुम्बिश नहीं करता तो मसा नहीं आता, और जब मसा नहीं आता तो कुवत नहीं आती, और जब कुवत नहीं आती तो कुदरत काम नहीं करती। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदावंद है, और वो अपनी कुदरत जाहिर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लंगड़ा लंगड़ा रहे, वो नहीं चाहता अंधा अंधा रहे, वो नहीं चाहता बहरा बहरा रहे, वो नहीं चाहता कि हम मर जाएं। वो कभी नहीं चाहता, लेकिन उसे पता था, तो उसने हमारी मौत का इंतजाम भी कर लिया था। क्योंकि हमारा खुदावन जबरदस्ती का खुदावन नहीं, हमारा खुदावन दिल से काम करवाने वाला खुदावन है। वो सोटी का खुदावन नहीं। मलेशिया में आज एक लॉ पास हुआ है कि जो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा उसको भारी जुर्माना होएगा और कैद भी हो सकती है। शुक्र है कि हमारा खुदावन हमें कैद से छुड़ाता है और हमें जुर्माने नहीं करता जब हम दुआ नहीं करते, जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं, और जब हम नाफरमान होते हैं वो हमारे पीछे भागता है। वो 99 को छोड़ के उस भेड़ के पीछे भागता है जो गुम जाती है। कैसा अच्छा हमारा चरवाहा है। And he is our good shepherd. The Lord is my shepherd. Psalm 23। आज हल्का सा उसको टच करूंगी क्योंकि ये मंथ कोई बता सकता है, जो ग्रुप के सब हम सब मेंबर्स हैं, नॉट एवरीबडी इन दिस फायर ग्रुप, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं और एक जनरल ग्रुप है जो कि सब शेयर करना चाहते हैं कि जी हम भी बताएं, हमें बहुत आता है। तो नॉट एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दिस फायर ग्रुप। तो कोई बता सकता है कि ये मंथ जो है वो कौन सा, किस चीज का मंथ चल रहा है? बिकॉज एवरी मंथ खुदावन मुझे बताते हैं कि ये मंथ पे फोकस करना है और ये टीचिंग देनी है, और जो मुझे मिलती है मैं आपको आगे देती हूँ। बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। मैंने कोई सेमिनरी नहीं की, मैंने कोई पास्टर्स की तरह कलाम की जांच पड़ताल नहीं की, कोई इंसाइक्लोपीडियाज नहीं पढ़े, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं एक स्लो रीडर हूं। बट आई एम अ वेरी गुड लिसनर, and I'm such a good listener and such a child at heart that I believe everything he says and I leave everything in his hands and he does the best for me. आज एक ईमान बढ़ाने के लिए बात आपसे शेयर करूंगी। आज जो शोएब ने गीत गाया जिसमें सारे साजों के नाम थे, जब मैं मीटिंग तैयार कर रही थी यहाँ पे, ये मेरा वॉर रूम है, प्रेयर रूम है, और तो थोड़ा लेट भी हो गया। मुझे सुनाई दिया कि ये मैंने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स जितने मेरे पास हैं वो सारे मैं पास रख लूं। नाउ श्रेब डिडंट टेल मी द सॉन्ग्स ही विल बी सिंगिंग एंड आई डिडंट क्वेश्चन कि ये क्यों रखने हैं, बट आई डिड because I listen and I obey. I do not ask why, because if I'm patient enough, टाइम टेल्स मी व्हाई। और ये सारे गीत, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने अपने पास रखे, ये इसका आज जो एक गीत गाया गया उसमें इनका जिक्र था। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास नहीं थे, बांसुरी, दस्तारा साज, लेकिन एक ऐसा दस्तारा साज है जो हम सबके पास है और जो दस्तारा साज से बहुत बढ़िया है। वो ये दस्तारा साज है जो खुदावन ने बनाया है, जिसे इंसान ने नहीं बनाया। सारे साज इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन ये साज, ताली जिसे हम बजाते हैं, ये खुदावन ने बनाई। ये हमें हाथ दिए हैं किस लिए? ऊपर उठा के उसकी तारीफ करने के लिए, ताली बजा के उसकी तारीफ करने के लिए। कब? जब हमारी जिंदगी में अच्छे काम हो रहे हो? नहीं, जब हमारी जिंदगी में जैसे भी हालात हो हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हम ताली बजाना ना छोड़ें, क्योंकि यही हमने सीखा है अपने खुदावन से, कलाम से,
कि अय्यूब पे जब बुरा वक्त आया उसने शुक्रगुजारी करनी नहीं छोड़ी। उसने कहा, क्या मैं सिर्फ अच्छी चीजें ही खुदा से लूं और बुरी चीजें ना लूं? He says, though he slayed me, yet I will trust in him. Yet I will trust in him. सो नेटवर्क चाहे खराब हो जाए बारिश की वजह से, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा एक वाईफाई है जो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और उस वाईफाई का नाम है पाकरू। पाकरू वो वाईफाई है जो कि ईमानदारों के दरमियान काम करता है, बिलीवर्स के दरमियान काम करता है, नॉन बिलीवर्स के दरमियान काम नहीं करता। उनको फील होता है कि हाँ जुम्बिश हो रही है। फील तो शैतान को भी होता है कि जुम्बिश हो रही है, लेकिन उस वो कुदरत नहीं दिखा सकता कोई खुदा की, क्योंकि उसके हो के अंदर से खुदा काम नहीं करता। लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदावन का कि वो हमारे अंदर से हो के अपनी कुदरत जाहिर करता है, क्योंकि हम कुछ है? नो, बिकॉज ही इज समथिंग, इनफैक्ट ही इज एवरीथिंग, ही इज ऑल इन ऑल। वो चाहता तो आदम और हवा को उसी वक्त खत्म करके नए आदम और हवा बना सकता था जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो, बिल्कुल जो परफेक्ट हो। बट ही हैड सीन द परफेक्ट वन, एंड हिज नेम इज लूसीफर। Perfect as he was, as he is, a perfect liar, a perfect hypocrite, a perfect deceiver, a perfect chaos creator, a perfect hater who wears mask of a sheep and then fools his people, the innocent people, the sheep who follow the lamb. So मैंने क्वेश्चन पूछा था और मुझे नासराक ने जवाब दे दिया, यस, इट्स द मंथ ऑफ स्पाइकनार्ड। स्पाइकनार्ड जिसको उर्दू में जट्टा मसी कहते हैं, और वो ऑयल था जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप इसको गूगल करके भी देख लें, ये बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है। ये वो ऑयल है जो कि मरियम मगदलीनी ने यीशु के पांव पे डाला, उसके सर पे डाला, और वो बहुत खुशबू वाला परफ्यूम है, ऑयल है। और वो छोटी सी बोतल हम लोग लेके भी आए थे इंग्लैंड, इजराइल से, जब हम इजराइल गए थे। और वो काफी एक्सपेंसिव थी, छोटी सी बॉटल, और वो खत्म हो गई बिकॉज वी यूज्ड इट इन इन टू अनॉइंट पीपल। और जिसके पास उसकी अनॉइंटिंग पहुंची, वो काम करेगा, वो काम करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों। हाउ पेशेंट आर वी? आर वी पेशेंट लाइक जॉब, or are we impatient like Judas, who wanted to sell that perfume and give the money to the poor? अच्छा काम है गरीबों में में पैसे बांटना, बहुत अच्छा काम है। खुदावन कहता है कि जिसने किसी स्ट्रेंजर को एंटरटेन किया, उसने मुझे कबूल किया। लेकिन यीशु ने कहा, ये लोग तो तुम्हारे पास रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। And Mary loved Jesus so much. Thank you so much, Shrib. I know you need to go, but thank you so much. I loved the praise and worship. और जाने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि आज जो है Nasra, let's welcome Nasra. Nasra, welcome into the Stars of David leadership, because you were part of the ministry as you committed to the Lord in 2024. और खुदावन ने आपको खड़ा किया है as a leader now. You're leading the 5th branch, and you will be interceding with me for nations, for people, and I welcome you as a lead. और आज हम दुआ करेंगे। आज मैसेज कम, दुआ का सेशन ज्यादा होगा। हम जाने से पहले आपको बता दूं
Shoaib, we will be praying as usual. Of course, Friday हम कोयटा के लिए तो प्रे करेंगे ही करेंगे, जो हम फ्राइडे को करते हैं. कई दफा अगर हम मीटिंग में नहीं करते तो वो मैं सुबह अपना टाइम अपना गुजार चुकी होती हूँ, इसलिए हम नहीं करते. We will be praying for Karachi as well, and we will be praying for Lahore. Why? Because we have representatives from these cities. आज हम इस्लामाबाद के लिए प्रेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, but that doesn't mean we do not pray for Islamabad. I do pray for Islamabad, and we will be praying for Islamabad as well, but not today. So thank you so much, Shoaib. God bless you. Rise and shine in the name of Jesus. So, anointing, मसा, जिसकी जिंदगी में आ जाए, उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? नहीं, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं. आप सोचें, मैं मरियम की जिंदगी में कैसी प्रॉब्लम बढ़ गई कि जब वो यीशु से तो उसको माफी मिल गई, उसको कबूलियत मिल गई, बट ही वाज वन मैन. द रेस्ट ऑफ द पीपल वर रेडी टू स्टोन हर एंड किल हर. But if one man is standing with you, you don't need any other man or woman for that matter. If one man is standing with you and for you, because you can win any war with that one man, and his name is Jesus. He has proved it. He has proved it. और अगर आज हम में से कोई जीत नहीं रहा, तो फिर हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम कहां पे हम चूक गए, कहां पे हमारी दुआओं में कमी रह गई, कहां पे हमारी परस्तिश में कमी रह गई. बिकॉज कलाम कहता है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली. क्या हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं या हम उसको चेस कर रहे हैं? चेस हमें खुदा को करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए शैतान को. तो जब हम उसको रेजिस्ट करते हैं और वो हमें घूसे मारता है, घूसे मारता है, घूसे मारता है, और हम रेजिस्ट करते हैं, वो चला जाता है, वो चला जाता है. कलाम कहता है, बी स्टिल, आप स्टिल हो जाएं और उसको मारने दें, वो चला जाएगा. लेकिन जब आप उसके पीछे भागेंगे तो वो आपको गहरी खाई की तरफ लेके जाएगा. तो चेस ना करें, चेस ना करें, बर्दाश्त करें. और खुदावन जब देखेगा कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो फिर वो आपके हाथ उठाए खड़ा करेगा और उनमें वो कुव्वत आएगी, वो ताकत आएगी जो कि हर शैतान और उसकी जो आर्मी है, वो आपसे कोसों दूर भागेंगी, क्योंकि आप यहोवा पाक के उस अथॉरिटी में खड़े हो जाएंगे जिसका नाम है फायर. फायर, कुदरत भरा नाम यस्सु. आग निकलेगी जब आपके मुंह से, कलाम की आग. तो शैतान के पास तो सिंगल धारी तलवार है, हमारे पास अगर दो धारी तलवार है. द ओनली वेपन ऑफ ऑफेंस इन द आर्मर ऑफ गॉड, एंड ही नोज इट, जिसके पास है, और वो उसको तंग करता है. और अगर आप तंग होते हैं तो फिर आप जीत नहीं सकते. तो बर्दाश्त करें, पेशेंस लेके आए, और रूह का चौथा फल है पेशेंस. And we will be, as Stars of David is walking on the rainbow ladder. But interestingly, the rainbow has 7 colors. I would say, I am learning the fruits of the Holy Spirit and trying to bear the fruits as well. So this is the third year for the ministry, and the third fruit is peace. कभी कभी पीस के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं तो तलवार चलाने आया हूं. और उसने तलवार चला के उन सब के दुकानें उलट दी जिन्होंने पाक मकाम पे सौदेबाजी की. तो कभी कभी लड़ना कर पड़ता है, लेकिन उससे खुदावन को जलाल मिलता है जब हम खुदावन के काम के लिए खड़े होते हैं. और मसा, ये जो पाक मसा जो बंधन तोड़ता है, वो
जब आप पे काम करता है तो शैतान नहीं खड़ा हो सकता। तो मसा किस पे काम करता है? कितने लोग हैं हम देखते हैं जो कि मसा जिनको मिलता है, जो अनॉइंट होते हैं, पास्टर्स अनॉइंट होते हैं टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए। क्या मसा हर एक पे काम करता है? मसा आंखें ठहरता है। खुदा की कुदरत तब काम करती है जब आप सर झुका के यीशु के पीछे चल रहे हो। अगर आप या मैं सर झुका के यीशु के पीछे नहीं चलें तो उसका मसा जो आके ठहरा है वो ठहरा रहेगा, लेकिन कुदरत काम नहीं करेगी। और कईयों पे अगर बहुत ज्यादा मसा ठहर गया है तो जब वो कलाम शेयर करेंगे तो हीलिंग्स भी होंगी। लेकिन फिर लिखा है कि वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मुआवजात किए, और मैं कहूंगा जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। तो मुआवजात करना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ा मुआवजा अगर आप कर लें तो फिर तो आपके लिए जो क्राउन तैयार है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। और सबसे बड़ा मिरेकल है टू ब्रिंग अ सोल इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। हीलिंग और मिरेकल इज नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि हमारा खुदा तो मौजूद का खुदावंद है, करना उसने है। मैं कोई मिरेकल नहीं कर सकती, आप कोई मिरेकल नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा प्रीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट कोई मिरेकल नहीं कर सकता। वी आर ऑल यूजलेस। वी आर ऑल यूजलेस। वी आर सिंफुल ह्यूमन बीइंग्स। मौजात होते हैं तो यीशु के नाम में होते हैं। उसका नाम आला नाम, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर वेसल अपना काम अच्छे से ना करे तो पॉटर क्या करता है? फेंक देता है, दूसरा वेसल ले आता है जो उसका काम करे। एंड टुडे वी हैव अ न्यू वेसल टू इंटरसीड फॉर हिज पीपल, एंड वी विल बी प्रेइंग एज आई हैव बीन प्रेइंग। और 3 साल की ये मिनिस्ट्री, इसमें आंसू है, इसमें टाइम है, इसमें रंजिशें हैं, इसमें मुश्किलात हैं, इसमें नाराजगियां हैं, लेकिन इसमें वफादारी है। इसमें वफादारी का वो खून और पसीना है जो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ खुदावन जो के आसमानों की बुलंदियों पे बैठा है उसने देखा है। और जब उसने देखा है तो मुझे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज द रिवॉर्ड गिवर। नो वन एल्स कैन रिवॉर्ड मी except the one who's seated on the throne, and his name is Yahweh. And I honor the sacrifice of Jesus, who said, let not my will but yours. और जब वो जा रहा था तो उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते। हम अकेले नहीं रह सकते। हमें बनाया ही दो था। अगर आदम अकेला रह सकता तो उसके लिए हवा खुदा नहीं बनाता। और फिर जब हवा ने नाफरमानी की तो आदम को अथॉरिटी मिली उसको पाबंद करने के लिए। किस चीज में? कौन से रंग के कपड़े पहनने? बाल खोलने के बंद करने? नहीं, कलाम की वफादारी करने के लिए। कलाम की वफादारी। और कलाम की वफादारी क्या है? ईमान। कई लोग समझते हैं हेवन में शलवार कमीज और बड़ी बड़ी चादरों दुपट्टे वाली खवातीन आएंगी। जो जीन्स पहनती हैं वो खवातीन तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी हेवन में।
People of Pakistan, wake up. Men of Pakistan, wake up. In the kingdom of heaven, the angel is not checking whether the woman is wearing a shalwar kameez or jeans. So let us honor the anointing and not the clothes. Let us honor the anointing and not the clothes, because if you're judging the clothes and not the honoring the anointing, you will be paid back for dishonoring the anointing. This is the word that I have received in the morning. God is angry. I am not angry. I felt the anger for myself as well. If I do not honor anointing, I will be punished. You will be punished. Everyone will be punished who doesn't honor the anointing. जब डेविड पे मसा ठहरा और साउल को जलसी हुई तो क्या हुआ? उसको एक बुरी रूह आके सताने लगी और उसको कौन उसके लिए मददगार ठहरा? पाक रूह उस वक्त मौजूद नहीं था जैसे कि आज मौजूद है. डेविड वॉज द वन हु यूज्ड टू प्ले, और उसकी जो पाक रूह थी, सॉरी, उसकी जो बुरी रूह थी वो चली जाती थी. So honor the anointing of every man and every woman, because God made both equal. In the spirit we are equal, because the scripture says you're neither Jew nor Gentile, no man, no woman, no slave nor free. In Christ we are all one. We're all one. We are the body of Christ. Body means कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई आंख है, कोई कान है. क्या कान आंख को कह सकता है मैं ज्यादा अच्छा काम करता हूं? क्या नाक पैर को कह सकती है कि मैं अच्छा ज्यादा काम करती हूँ? No one, no body part can say I'm better than you. So we are the body of Christ. Let's honor everyone who has the anointing. और आज की वर्स मैं डिक्लेयर करना चाहूंगी. नासरा, अगर आपके पास बाइबल है, इंग्लिश उर्दू जो भी बाइबल है, तो काइंडली आज की वर्स आप डिक्लेयर करें. एंड देयर इज अ डीप मीनिंग टू इट. मैं उसकी मीनिंग की गहराई में नहीं जाऊंगी. जी सिस्टर, मैं पूछ सकती हूँ? जी, इज़ाया की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत. इज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27. आपको मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर काइंडली रिपीट इट. इज़ाया चैप्टर 10 यस रिपीट कीजिए. इज़ाया 10:27. ओके वो जल्द आ रहा है. यीशु जल्द आ रहा है. और ये मसा जी बिल्कुल भाई, पढ़े. सबब से टूटेगा. हाँ जी, पूरा पढ़े. जी मैं पढ़ती हूँ. जी. और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा. आमीन. आमीन. अब देखिए यहाँ जुए की बात है, और अब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ. इंग्लिश में लिखा है, एंड इट शैल कम टू पास इन दैट डे. अब इसकी मैं भेद में नहीं जा रही, लेकिन लेट्स गो ऑन. इट सेज दैट हिज बर्डन शैल बी टेकन अवे फ्रॉम ऑफ thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Anointing बहुत ही पाक, बहुत ही कीमती, बहुत ही पावरफुल चीज होती है, which people think it's a piece of cake. Oh, मसा है, आ जाओ तुम भी मसा. Not everyone can be anointed, people.
those who will be watching this later on, anointing is dangerous. ये जो हर किसी को लोग अनॉइंट करते फिरते हैं, प्लीज आई बेग यू, डू नॉट अनॉइंट एवरीबडी. द स्क्रिप्चर क्लियरली सेज नॉट एवरीबडी कैन बी अनॉइंटेड. Everybody can be saved because the blood of Jesus is for everybody and it says everybody. But the anointing is not for everybody. Anointing, और इसमें एक और चीज यूज की गई है, योक. और जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो उस पे लिखा है मेरा जुआ ले लो, टेक माय योक इट इज लाइट. अभी कई हम बॉर्न अगेन बिलीवर्स को देखते हैं कि और जैसे ही खुदावन में आते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलात शुरू हो जाती हैं. तो व्हाट डज इट मीन माय योक इज लाइट? वो तो और प्रॉब्लम शुरू होगी, फैमिली में प्रॉब्लम, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, सास ससुर के साथ, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम का अंबार गिर गया. तो फिर ये जुआ मुलायम हुआ क्या? उस जुए और इस जुए में क्या फर्क है? वो जो जुए की बात हो रही है वो रिलेशनशिप्स जो कि हमारे दुनियावी हैं उनकी बात नहीं हो रही. वो जो जुआ है वो जुआ है मेरा रिश्ता यीशु के साथ. जैसे कि आप देखते हैं कि जब जैसे कि आपने देखा होगा फार्म्स में हल जब चलाया जाता है, जमीन को उसका खोदा जाता है, तो दो बैल होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं. अगर हम मुख्तलिफ साइज के या मुख्तलिफ स्पीशी के कर दें तो वो सही नहीं जूतेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड फर्क होगी, उनकी आदत फर्क होंगी. तो एक जैसे होना चाहिए, तो ही वो हल जो है अच्छा जोत सकते हैं. तो वो जब कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है, और जब आप पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो जान लें कि वो जो जुआ है वो अगर दो बैल हैं तो उसमें यीशु ने अपने आप को एक वर्कर की हैसियत दी और कहा कि मेरे साथ आके खड़े हो जाओ और मेरे साथ मिलके जब तुम जहाल चलाओगे तो तुम अंदर से सकूनत पाओगे, अंदर से मुलायम रहोगे, अंदर से पीसफुल रहोगे, अंदर से जॉयफुल रहोगे, अंदर से बाहर तूफान आ रहे होंगे, लेकिन आप कहेंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार. अंदर से आप रो रहे हो, अंदर से आप खुश होंगे, हो सकता है बाहर आप आंसू बहा रहे हो, अकेले में लोग ना देख पा रहे हो, लेकिन अंदर से आप खुश होंगे क्योंकि आपने उसका जुआ उठा लिया. वो मुलायम है, वो शादमान करता है, और कलाम कहता है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है. तो कोई अगर शिफा की किसी को जरूरत है तो उसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में, उसके दिल में शादमानी नहीं. अगर आपके दिल में शादमानी नहीं तो आपको शिफा नहीं मिल सकती. ये कलाम की बात है, मेरी बात नहीं. और शिफा किस चीज से? एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट कॉजेस वरी इन योर हेड. क्योंकि हम उदास या हम परेशान किस चीज से होते हैं? अपनी थॉट्स से. हमें थॉट्स कैसे आती हैं? जब हम सुनते हैं. हु आर यू लिसनिंग टू? हु एम आई लिसनिंग टू? There are people around us, our family, our friends, our colleagues. We are constantly listening to them. Who are we believing? Are we believing our relatives? Are we believing our friends? Are we believing our colleagues? Or are we believing in the word of God, which is yes and amen? तो वो जुआ आपकी जिंदगी में आपको अंदर से मुलायम करेगा, और अगर आप अंदर से मुलायम और अंदर से शादमान और अंदर से पीसफुल और अंदर से शुक्रगुजार और अंदर से पेशेंट नहीं है तो फिर
आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी प्रॉब्लम से। आप हालेलुया का नारा नहीं लगा पाएंगे। और ये जो जुए की बात हो रही है, जो इज़ाया बात कर रहा है, जो कि खुदाम यीशु के 700-800 साल आने से, पैदाइश से पहले ये लिखी गई थी किताब, उसमें लिखा है कि his burden shall be taken off from where? Thy shoulders, and the yoke shall be destroyed because of the anointing, not because of the blood. The blood can heal, the blood can protect, the blood can deliver, but the power comes from anointing that breaks the bondage and delivers. Delivers what? Delivers a soul. Delivers a soul. That is powerful. जब एक सोल बॉन्डेज में है और वो यीशु को नहीं जानता, और वो अंदर से शायद बहुत ही अंदर से और बाहर से खुश है और शादमान भी है, वो आए बिकॉज उसके पास खाना है, पीना है, पैसा है, बीवी है, बच्चे है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, दुनिया की हर आसाइश है। अगर आपके पास दुनिया की हर आसाइश है, आप क्यों फिक्रमंद होंगे? आप क्यों फिक्रमंद होंगे? आपको कोई फिक्र नहीं होगी, बिकॉज आपके पास दुनिया की हर आसाइश है। आपके पास हर रिश्तेदार मौजूद है जो इंसान को खुशी देता है। रिश्तेदार खुशी देते हैं, बीवी खुशी देती है, हस्बैंड खुशी देता है, बच्चे खुशी देते हैं, पैसा खुशी देता है, अच्छा घर खुशी देता है, गाड़ी खुशी देती है। और जो अब सब आपकी चीजें जो आपकी जरूरत है इस जिस्म को आपकी जिंदगी में है, तो आपको शादमानी मिल जाती है, नकली शादमानी। नकली शादमानी मिल जाती है, क्योंकि असली शादमानी मिलती है यीशु से, और नकली शादमानी कुछ दिन ही कायम रह सकती है, क्योंकि जब तक खुदावंद वेट कर रहा है और वो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, और वो नहीं चाहता कि किसी भी की हलाकत हो, तो फिर जब रस्सी खिंचेगी तो फिर पता चलेगा कि यीशु की जरूरत किस किस को है। हर एक को है, हर एक को है, क्योंकि यीशु के बगैर हम बाप तक नहीं पहुंच सकते, हम बाप तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें चुना गया है किस लिए? हालेलुया कहने के लिए सारा दिन। यह अच्छी बात है हालेलुया कहने के लिए, लेकिन कई लोग सिर्फ घर में बैठ के हालेलुया करते हैं। लेकिन अ क्रिश्चियन इज ऑट टू बी अ डिसाइपल। ये डिसाइपल की फर्स्ट क्लास है जो आप पीछे नजर आ रहे हैं। क्लास की सूरत मैंने कुछ हुई थी, फिर लास्ट ईयर ही हुई थी क्लास, और फिर मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई और ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो सकी। एक क्लास के बाद विच आई विल रिज्यूम, वी स्टार्टेड विद द बुक ऑफ मैथ्यू, एंड द फर्स्ट क्लास वाज हु इज अ डिसाइपल। और मैंने ये होमवर्क दिया था कि लोग लोग वो करें कि जी हु इज अ डिसाइपल। द प्रॉब्लम इज दैट गॉड क्रिश्चियंस needed to be disciples, and every Christian has been commanded to go and preach. What does that mean? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलपिट पे खड़े हो जाए और बोले आज मैं प्रीचिंग करूंगा, आज मैं मैसेज दूंगा या दूंगी। We can preach in our circle. What is your circle? For a woman who's not working, who's at home, her circle is her children. वो अपने बच्चों को क्या सिखा रही है? Is she preaching the word to her children? Is he preaching Jesus to her children? और जो काम कर रहा है, क्या हम अनबिलीवर्स में रहते हुए किसी को यीशु के बारे में बता रहे हैं? क्या हम कोई रूह जो के आग की तरफ जा रही है उसको बता रहे हैं कि his yoke is light, his yoke is light, and he is the good shepherd,
He's my Lord. He can be your Lord as well. अगर हम नहीं बता रहे, then we are not fulfilling the command that Jesus gave. Go and preach. Go. He said, go. And I accept my sin that I have been late. But as I said the other day, delay in the kingdom of heaven is not denial. क्योंकि हम लेट हो सकते हैं, हमारा खुदावन कभी लेट नहीं होता, क्योंकि वो पेशेंट है और वो पेशेंस के साथ वेट करता रहता है जब तक के टाइम पूरा ना हो जाए, क्योंकि हर चीज की हद होती है। 4000 साल जब टाइम पूरा हुआ यीशु के आने का, तो चौथी औलाद से जूडा चौथी औलाद था। यीशु आया कहां पे हुकूमत करने? He's called the Prince of Peace. There's no peace in the world. वो इन 4 खानों में हुकूमत करने के लिए आया, हमारे दिलों में, ताकि हमारे 4 खाने जो कि खाली रहते हैं और शैतान की हर आवाज पे खड़े हो जाते हैं कान हमारे, उसके ऊपर चढ़ के राज कर सके वो। Because time was fulfilled after 4,000 years. And again, time is fulfilled. We are overdue. 6,000 years have gone by. 2,000 years plus after the coming of the Jesus and his death and his resurrection. And he's coming back to take us. Are you ready? I am. I'm death ready and I'm rapture ready. So let's praise the Lord. कि है वो जो कि anointing, जो कि वो कुदरत है, वो ताकत है जो कि जुए तोड़ती है। यीशु का खून जुए नहीं तोड़ता, यीशु का खून धो के पाक करता है, ताकि पाक चीज में पाकरू आए, मसा ठहरे और मसा जुए तोड़े और एक कैदी को आजाद करे और वो आ जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब one soul enters the kingdom of heaven, heaven rejoices. Angels are happy. There's a party in heaven. There's singing. There's dancing. तो ये योग कौन सा है? ये है रिश्तेदारों का योग, रंजिशों का योग, फ्रेंड्स के आपस में नाचाकी, कोलीग्स की नाचाकी। दैट इज अ योक, बिकॉज हमारा खुदा जो है वो लड़ाई नहीं पसंद करता। ही इज अ पीसफुल गॉड, ही डजंट लाइक वॉर्स। बट व्हेन पीपल आर नॉट ओबीडियंट, he becomes the god of war, because he wants everybody to be obedient to him, just like his son, who was birthed by the Holy Spirit without a father in the body. Why? Because he's the only begotten son of Yahweh. His name is Yeshua. And in his name, we can ask anything. What? Anything that is in accordance to his will. And it is his will that souls be saved, because this is why Jesus came and he went away and he didn't leave us alone. And then he sent off people 2 by 2. Not alone. Not alone. 2 by 2. Because if one falls, the other can pick the other person. Ecclesiastes 4:12. A cord of 3 strings. So let us walk 2 by 2 in the spirit, not in the flesh, because the flesh benefits for nothing. The flesh only benefits to have children. That's the only benefit. But the spirit 2 by 2 can conquer. Rather, Jesus conquered, and he made us more than conquerors. So we will pray. And today I'll request my Sister Nasra, to pray for Pakistan. And you start praying from Quetta. Just imagine the map of Quetta as I put, the map of Pakistan as I put it on the
page as well on Facebook. Imagine that map and you start from Quetta. Quetta is in the west of Pakistan. And from there, you go to Karachi, which is the south of Pakistan. So you're going anti-clockwise. And then you come to Lahore, which is your city. And that is the east of Pakistan. So this forms a semicircle because today we are not praying for the north of Pakistan. As I was guided in the spirit, that whoever joins today, that person becomes a representative of Pakistan. And of course, Shoaib was the first to join from Quetta, then Vincent Bhai from Karachi, and then you from Lahore. And you have been in school and you came all the way running, rushing, and then you've joined. God honors your sacrifice. You have two children. One is just still 1 year old, and the other one is also small. You have great blessing, because a person who gives time to the Lord and praises the Lord in all the problems, that person is to be praised. And I praise you, women of God, as you intercede. I am with you, and I will say amen to your prayer. आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा चिरानी पाक, खुदा में शुक्रों के खुदा या रब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा, अपने हजूर हाजिर होने का मौका बख्शा है खुदावन। हम तेरे हजूर हाजिर होते हैं, सजदा करते हैं, वाहिद जिंदा खुदा के आगे झुकते और सजदा करते हैं। ऐ खुदावन तुझसे ही मांगते हैं और ऐ खुदावन पाते हैं। ऐ खुदावन तूने कहा मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वाकई हम ढूंढते और पाते हैं, खटखटाते तो हमारे लिए ऐ खुदावन 10 रास्ते खुल जाते हैं। ऐ खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदावन सिस्टर सबिता के लिए, ऐ खुदावन खुदावन आपकी बंदी के लिए जिन्होंने ये मौका बख्शा, ऐ खुदावन उनके थ्रू ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया अपनी खिदमत में आगे बढ़ाने के लिए। मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, अपने आप को खाली करके आपकी खिदमत के लिए पेश करती हूँ। अपने रूह से भर दे, अपने मस्सा से भर दे। ऐ खुदावन आपने अपना पाक लहू बहाया हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हम इसलिए तेरे शुक्रगुजार हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं दुआ गो हूँ, यहाँ पे मौजूद एक एक क्रिश्चियन के लिए जो तंगी में, मुश्किलात में, बीमारियों में है, उनकी परेशानियों को दूर करना मेरे खुदावन, उनकी ऐ खुदावन सब तकलीफों को खत्म करना और अपना मस्सा वाला हाथ बढ़ाना। ऐ खुदावन छू लेना, एक एक जान को छू लेना, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी दुआ को सुन रहे हैं खुदावन, उन्हें छूना बड़ी बरकत देना, अपने मस्सा से भर देना। ऐ खुदावन आज सुबह ख्वाब में जो मुझे आगाही हुई, वक्त नजदीक है, हमें तौबा की जरूरत है। हम तौबा करते हैं, अपने आप को आपके सामने पेश करते हैं। ऐ खुदावन हमारे तमाम गलती खताओं को माफ कर दे, हमें माफ कर दे मेरे खुदावन, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, फेथफुलनेस से इस्तेमाल करें। ऐ खुदावन हमें फेथफुलनेस कभी खत्म ना हो, आपके लिए हमेशा बढ़ती जाए, खत्म ना हो, और आपके नाम को हम हमेशा इज्जत और जलाल देते रहें, और आप में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। हमेशा आपके नाम की ऐ खुदावन हम दोस्तना करते रहें। ऐ खुदा हमेशा हमेशा ऐ खुदावन हमारे साथ रहना। अगर हमारे दिल में कोई बुरी सोच आए तो उसे फौरन मिटा देना। हम अपनी सोचों को, फिक्रों को आपके हैंड ओवर करते हैं। छू लेना मेरे खुदावन, छू लेना, छू लेना, मस्सा महसूस करना मेरे खुदावन। खुदावन मैं एक बार फिर से सिस्टर सबिता को, हनान भाई को आपके हजूर हाजिर करती हूँ, इनकी इस खिदमत के लिए, इस बीज के लिए जो ये बो रहे हैं खुदावन, ताकतार फल लाए, और ऐ खुदावन जिंदगियां, रूहें नजात पाए, और जब वक्त आए तो ऐ खुदावन
बहुत सी रूहें साथ लेकर जाएं मेरे Oh, खुदावन। yes, Lord. मेरे Yes, Lord. खुदावन बहुत सी रूहें साथ जाएं Yes, और हमें Lord. वहां भी ए खुदावन आपके नाम को इज्जत और जलाल हम दे और आपकी प्रस्तिश Yes. करे हमेशा। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद कुछ करने को है और वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो इंतजार करता है क्योंकि वो हम में से करना चाहता है, हम में से हो के करना चाहता है। क्या वो हमसे पूछ के हवा चलाता है? क्या वो हमसे पूछ के मैं बरसाता है? लेकिन हम कलाम में देखते हैं कि जब उसके वफादार उसको पुकारते हैं तो वो आसमान खोल के मी भी बरसाता है, वो आग भी भेजता है, बशर्ते कि ऐसा मन हो जो उसको बुलाए और वो कहे मैं सुन रहा हूं और मैं पूरी करता हूं तेरी बात। तो खुदावन हम सबको खुदावन ने चुना है इस बड़े मिशन में, जिस मिशन का नाम है यस Jesus. We're in Team Jesus, and Team Jesus always wins. Hallelujah. Hallelujah. Can I hear a hallelujah in return? Hallelujah, hallelujah. 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 हालेलुया। नासरा, मैं चाहूंगी आप अपना हालेलुया। ख्वाब, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, अपना अपना ना ख्वाब शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे सिमिलर खुदावन ने बातें बताई हैं और सब कुछ मुझे बताने की इजाजत नहीं, लेकिन जब खुदावन चाहता है तो मैं उसको रिवील करती हूँ। बहुत से लोगों के बारे में भी मुझे बातें खुदावन बताता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि जब तक कि मुझे उसकी इजाजत ना हो। तो अपना ख्वाब आप जरूर शेयर करें ताकि जो ये मैसेज देखे, सुने, उसको तंबी तो हो और वो जागे, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन सो रहे हैं, उनको जगाना है, हमें क्रिश्चियंस को जगाना है। बेशक बेशक। जी। आज मैंने सिस्टर सुबह ख्वाब देखा था कि बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ गए हैं और क्लाउड्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं और जमीन पे गिर रहे हैं, लोगों के घरों में गिर रहे हैं, और जहां वो गिर रहे हैं वहां आग लग रही है। वो क्लाउड्स पानी से भरे हुए नहीं थे, वो आग से भरे हुए थे। और उसी टाइम हम दुआ में ठहर गए और खुदा का रहम और फजल मांगना शुरू हो गए और हमें आगाही हो रही थी कि तौबा कर ले, वक्त नजदीक आ गया है। बिल्कुल। तो बेशक हमें तौबा की जरूरत है। और जब मैं उस ख्वाब से जाग गई, उठ गई, फिर भी मुझे यही गाइडेंस मिल रही थी कि मैं ये मैसेज सब तक पहुंचाऊं कि वक्त नजदीक आ गया है, तो हमें तौबा करने की जरूरत है। बेशक, बेशक। और और शुक्र है खुदा का, ख्वाब में मैंने एक और चीज देखी कि बरे का लहू जहां पे लगा है वहां पे वो बादल नहीं गिर रहे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। और हमारे हालेलुया। घर में एक बादल नहीं गिरा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बेशक, बेशक। ये खुदावंद ने आपको आगे आने वाले टाइम के बारे में बताया है, और खुदावंद ये इस तरह का ख्वाब तो नहीं मैंने देखा, लेकिन वक्त बहुत करीब है। मुझे रोज खुदावंद की तरफ से एक तंबी वाला मैसेज आता है कि उन लोगों को जगाओ, जगाओ। लाइक आई कैन फील हिज एंगर। खुदा का मैं गुस्सा फील कर सकती हूँ कि मेरी कौम, जिसको मैंने कहा गो, वो जा क्यों नहीं रही, और वो जा नहीं रही। तो यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट यू हैव सीन। और खुदा ने यही कहा था कि अगर वो नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि वक्त करीब है और मैं जाऊंगा। और जब मैं जाऊंगा तो क्या मतलब है, इजरायली जब इजिप्ट फेरो ने नहीं छोड़ रहा था तो क्या हुआ, मूसा ने किसकी कुदरत दिखाई? अपनी कुदरत नहीं, खुदावन की कुदरत दिखाई। और वो मौजे हुए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि जब आपको आज यही ख्वाब में नजर आया कि आग, आग किसकी वो है, तशबीह करते हैं कलाम में, आग पाक रूह की तशबीह करता है। पाक रूह पाक है और वो भस्म करने वाली है, क्योंकि जब तक हम आग से
सोना जब तक आग से नहीं जाता वो कुंदन नहीं बनता। आप देखें जैसे विमेन है, और कई विमेन जो कि बहुत ज्वेलरी की शौकीन होती है, मैं भी ज्वेलरी की शौकीन हूँ, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है। मैंने कभी अपने हस्बैंड को तंग नहीं किया मुझे गोल्ड लेके दो, मुझे डायमंड लेके दो, ना मेरे पास इतनी कोई गोल्ड है और डायमंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लड़कियों की फरमाइश होती है कि हमें एंगेजमेंट डायमंड रिंग चाहिए, हमें वेडिंग डायमंड रिंग चाहिए, हमें डायमंड का सेट चाहिए। और डायमंड क्या है? डायमंड सिर्फ एक प्योरिफाइड फॉर्म है किसकी? कार्बन की। वो कोयला, कोयला जिसे हम जलाते हैं, उसकी प्योरिफाइड फॉर्म है डायमंड। तो पाक रूह वो आग का काम देती है जो कि एक कोयले को डायमंड बनाती है। और हमें डायमंड बनने की जरूरत है ताकि हम में से यीशु दिखे। क्योंकि अगर हम कोयला ही हैं और हम यीशु 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 करते हैं, तो फिर हम जो कलाम में लिखा है उसको पूरा नहीं करते। तो हमें फल नजर आने चाहिए। और प्रॉब्लम यह है कि जिसमें फल नहीं होता वो हमारे फल आकर चुराना चाहता है और फिर हम पे पथराव करता है ताकि हम फल तोड़ के ले जाएं। तो कोई बात नहीं, ले जाए तोड़ के, हमारे और फल निकल आएंगे। लेकिन उनका फल जो है उसमें कीड़ा ही लग जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा तोड़ के लेके जाएंगे तो एक थोड़े हद तक ही वो फल चल सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं। और ये हमारे जो आप बता रहे से आपके घर पे आग नहीं गिरी, क्योंकि आग दो तरह की है। एक है अनॉइंटिंग वाली आग जो आपको गरमाइश देती है, मतलब ये कि सर्दी में आपको गर्म रखेगी, जलाएगी नहीं, वो हीटिंग का काम देती है। लेकिन पाखरू वही आग है जो कि अगर गुनाह से हम दूर नहीं होते तो वो भस्म कर देती है। जैसे कि एलाइजा ने आग बुलवा ली थी, और वो जो कि पानी से भर गया था, उनकी उनकी जो वो थी सैक्रिफाइस जो थी, जो उन्होंने अपने खुदा बाल के आगे की थी, वो सारा जल गया था। हालांकि पानी में आग नहीं लगती, लेकिन हमारा खुदावंद पानी में भी आग लगा सकता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको मजीद बरकत दे। जैसे कि हम कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल बी प्रेइंग एवरी फ्राइडे। आई प्रे एवरी डे, बट वी विल बी इंटरसीडिंग टुगेदर, बिकॉज अब तक मैं जैसे अकेले में इंटरसीड करती थी, लेकिन दिस प्रेयर इज इनफ, बिकॉज हम तीन हैं, हमने आमीन कहा है। और खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम मिल के दुआ करें। उसने आदम और हवा को उधर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने मिल के तो काम किया, लेकिन मिल के गुनाह किया, मिल के फर्मा बरदारी नहीं की। तो अगर हम फर्मा बरदार नहीं हैं, तो फिर हमें खुदावंद कहता है गो गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू सी यू, आई डोंट वांट टू सी यू। लेकिन ही डज नॉट kill us, he does not want us to perish। तो वो हमें कुछ देर के लिए अलहदा कर देता है ताकि ये अपना सबक सीखें, और फिर मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाए, तो तब तक मैं इनके लिए बंदोबस्त करूं ताकि ये मेरी पाकीज़गी में आ सकें, क्योंकि अदरवाइज हम जल जाते हैं। तो वक्त करीब है, और आज ये भी मैंने साथ ही रखा था, जैसे कि मुझे खुदा ने कहा, ये सब चीजें इधर उधर घर में होती हैं, और ये मैंने सारी चीजें पास ला के रखी, और ये गीत गाया गया, और कोई नरसिंगा फूक रहा है, नरसिंगा फूका जा चुका है, किसको सुनाई देगा? जिसके मसा है कान। जिसके कान मसा नहीं है उसको सुनाई नहीं देगा, और अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो वो रैप्चर नहीं होगा, और अगर वो रैप्चर नहीं होगा तो वो यहां रह जाएगा, और फिर उसको सामना करना पड़ेगा एंटी क्राइस्ट का, और फिर वो मार्क ऑफ द बीस्ट का। और फिर जब पाकरू उठा लिया जाएगा तो उसकी अपनी दानिस्त, अपना विजडम, अपनी कुवत इस्तेमाल करे, हाँ करे या ना करे, मार्क ले के ना मार्क ले, जो लेगा वो पेरिश हो जाएगा, जो नहीं लेगा वो किंगडम ऑफ हेवन में पहुंच जाएगा। तो हम सब फर्स्ट फ्लाइट लेने वालों में से हैं, और हम खुदावन के हजूर उस टेबल पे होंगे जो कि तैयार है, जो कि मुझे खुदावन ने दिखाई है, वो टेबल तैयार है। हमें अब ज्यादा टाइम नहीं कि हम उस टेबल पे बैठ के उसके साथ मैरिज सफर का खाना खाएं। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से अनॉइंटिंग बहुत पाक चीज होती है, और इसीलिए कहा गया है कि डू नॉट टच माय अनॉइंटेड। तो हमें किसी के
खिलाफ बात नहीं करनी है। हमने अगर कोई पास्टर है जो कि हमारी नजर के मुताबिक सही नहीं है, तो उसके लिए हम दुआगो हो जाएं, उसके लिए हम रोजा रखें कि खुदावंद उसे बताए कि मैं हूं जो सो हूं। तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई पाकिस्तान में। आई एम लेफ्ट अलोन, बट दैट्स ओके। लेट्स प्रेज द लॉर्ड एंड कंटिन्यू टू प्रेज द लॉर्ड टिल वी आर टेकन अप। I am the bride of Christ, and I'm ready to go home. Are you ready to go home? Our Father is waiting. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. And there's no one to say amen, but of course my God is listening. And there's an amen by all the angels. God bless you. Whoever is watching from today onwards, you will receive your blessing as you believe. So shall it be. Bye-bye. Until tomorrow, the Sabbath day, the 7th day of the week. Shabbat Shalom.